So today we are going to discuss IO package. So first of all, let me show you the classes of IO package. First of all, I will discuss input stream. The abstract class is the superclass of all classes representing an input stream of bytes. Just see. बेटा मैंने आपको बताया था जितनी भी स्ट्रीम्स जावा में है वो सभी एक्सटेंड करती हैं किसको? इनपुट स्ट्रीम को। कैसी क्लास है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों? रीड करना है ये तो पता है, लेकिन कैसे रीड करना है ये नहीं पता। रीड स्ट्रीम को बेटा रीड करेगा, बाइट एरे में कॉपी कर देगा। स्ट्रीम को रीड करेगा, बाइट एरे में कॉपी कर देगा, लेकिन बाइट एरे में कॉपी करना यहां से स्टार्ट करेगा और ये उसकी लेंथ है। पढ़े बेटा आप लोग दिस वन, इसको पढ़ते रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स टू रीड, लेंथ, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफसेट इन एरे। गेटिंग और नॉट? बेटा स्किप कर देगा, इतनी बिट्स को क्या कर देगा बेटा? स्किप कर देगा। अवेलेबल बेटा ये बताएगा कि कितने बाइट्स अवेलेबल है अभी पढ़ने के लिए। लेट से 100 बिट्स टोटल थी, 20 आप पढ़ चुके, अवेलेबल में कितना आएगा? 80। क्लोज, स्ट्रीम को क्लोज कर देगा। मार्क बाद में डिस्कस करेंगे, रीसेट बाद में डिस्कस करेंगे। मार्क सपोर्टेड let me discuss byte input stream, sorry byte array input stream. Just see, getting or not? An array of bytes that was provided by the creator of stream. बेटा जितनी भी इनपुट स्ट्रीम है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको एक स्ट्रीम प्रोवाइड करानी है। इट मींस आपको सोर्स ऑफ डेटा देना है जिससे कि मैं डेटा को रीड कर सकूं। इनपुट स्ट्रीम समझ पा रहे हैं आप? आपको एक स्ट्रीम ऑफ सोर्स प्रोवाइड कराना है जिससे कि मैं डेटा को रीड कर सकूं। So in this array, what is the source? Source is byte array. You can see in constructor. Just see, that is the byte array. So that is the source. So first of all, let me discuss the concept of byte array input stream. So let me import IO package. Then write byte array let me write the specific numbers. Why? It is what? A, B, C, D, E, F. So let me pass source
एक बार में मैं एक बाइट को रीड कर सकता हूं। सो लेट मी प्रिंट थोड़ा आपने एक बाइट रीड कर लिया, लेट मी रीड 5 बाइट्स। So the output will be 65, 66, 67, 68, 69 and let's say 70. I can print the equivalent of the all. I can print the equivalent character. Getting or not? I can print the equivalent character of the specified number. So let me compile the program for you people. Let's see. Equivalent of 65 is capital B. Equivalent of 67 is capital D. No. Let me discuss. Let me discuss the things. Sorry. Let me remove this one. Let me explain the things in a different manner. So let me show you the things. 65, 66, 67, 68, 69 and 70. बेटा इनका हम कैरेक्टर इक्विवेलेंट भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? वी कैन परफॉर्म कास्टिंग। वी कैन परफॉर्म कास्टिंग। We can perform casting. So बेटा इस क्वेश्चन में डेटा का सोर्स क्या है? बाइट एरे। बाइट एरे की हेल्प से हमने डेटा को इनपुट कराया और डेटा को रीड कराया। ठीक है बेटा? That is the concept of byte array. If I will skip source dot skip 2 bytes. So first of all print 65, then 66, then 67, 2 byte skip, then 70. So please see the output. Sorry. Let me discuss the concept of skip. Let's see. We are going to skip 2 bytes. Getting or not? So that is byte array input stream. Let me discuss the another class. Data input stream. In data input stream, we are going to dealing with primitive data types. I am repeating, in data input stream, we are going to deal with primitive data types. It means the name of the method will be like read int, read float, read double, just see. Read simple. Read fully, skip bytes, same, not bits, just see bytes.
read boolean, read byte, read unsigned byte, like this, read short. So we are going to deal with primitive data types. Let me explain with the example. The name of the stream is data input stream. In data input stream, we are going to provide the source from the keyboard. So in this time, we are going to provide a source from a keyboard. System is a class. It means my current system, my current laptop, my current desktop. Dot in input stream. The meaning of this line is the source of the stream is keyboard, mouse and sound. Just see, unreported exception, IO exception must be caught or declared to be thrown. बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेप्शन आई है ये किस कैटेगरी की है? चेक एक्सेप्शंस. देखना चाहेंगे आप? So let me show you the concept of checked exceptions. Let's see. Extend exception. और बेटा अगर हम जाके देखें इस क्लास में, अगर मैं इस क्लास को डिस्कस करूं तो वहां पर लिखा हुआ है दिस वन. जस्ट सी, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है. तो वी हैव टू पुट दैट स्टेटमेंट इनसाइड ट्राई एंड कैच. So let me compile the program. No error. Let's see. Cursor is blinking. Cursor is demanding input from you. So I am going to provide the input. Just look at the output. So please write the binary equivalent of these numbers. Getting or not? Write the binary equivalent of these numbers. Then read the 32 bits. 1, 2, 3, 4. Getting or not? The moment I will write the binary equivalent of these numbers and I will read the first starting 32 bits and then combine a number that is float. Read 1 byte. Then read char. Read char is what? This one. Read int. Not available streams. So let me provide the stream for you. A, B, C, D. That is your float. Byte.
char for int. Just see the complete this one is what? Float, byte, this one is byte. 1 2 character and then number. So that is the concept of data input stream. Let me discuss one more class. Let me close the classes. The name of the class is file input stream. Getting? File input stream. So this class will be used to read a file. File input stream. File input stream. F equals new file input stream. Let me pass the name of the file. Let's say a52.java. The moment I will write system.out.println f.read and let me cast in a character. These are sorry. Let me put in a double quotes. So the first character is I. Why I? Import. Just see. So if I want to read many characters, what can I do? I can apply a loop. Let's see how we can apply the loop. बेटा जब मैं फाइल के लास्ट में पहुंच जाऊंगा, द मोमेंट आई विल टच द एंड ऑफ फाइल, देन द वैल्यू ऑफ ch विल बी -1. दोबारा समझो बेटा, जब मैं फाइल के लास्ट में पहुंच जाऊंगा the value of ch becomes -1. अगर ch की वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फाइल में अभी कोई ना कोई कैरेक्टर है जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम में इनपुट चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ. समझ गए आप? अगर बेटा -1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका फाइल खत्म हो चुकी है. जैसे आपने कंप्लीट प्रोग्राम को रीड कर लिया. कैसे बेटा? आपने एक कैरेक्टर रीड कर लिया, उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर फॉर्म में ही प्रिंट करा लिया, तो बेटा कंप्लीट फाइल प्रिंट हो गई. समझ पा रहे हो आप या नहीं समझ पा रहे बेटा? देख लो प्रोग्राम में ध्यान से. बेटा मैंने एक इनपुट को धीरे धीरे रीड कर लिया. रीड करने के बाद बेटा एंड ऑफ फाइल, मैं फाइल के लास्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये पता लगाने के लिए मैंने बेटा क्या कर दिया, मैंने -1 को चेक किया. समझ में आया आपको? Let me discuss one more class.
बफर इनपुट स्ट्रीम। बट ये क्लास बिल्कुल सेम है, बट बफर इनपुट स्ट्रीम में बेटा एक इंटरनल बफर बनता है। तो डेटा पहले बफर में जाएगा, उसके बाद हम डेटा को रीड करेंगे। थोड़ा मेनली ये कहाँ पे यूज होगा, इंटरनेट के ऊपर, जहाँ डेटा की जो स्पीड है वो बेटा कांस्टेंट नहीं है, वेरी करती रहती है। इन सच सिचुएशंस वी रिक्वायर अ बफर। Demanding input from the keyboard, just press enter. Equivalent of A 65 N 110 K4 107 equivalent numbers. Now let me discuss some concept of output stream. So I am discussing the concept of file output stream. बेटा फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर मैंने एक फाइल पास करी, तो बेटा मैं अपना आउटपुट इस फाइल पे लिख दूंगा। बेटा फाइल को लिखने के बाद क्लोज जरूर कर देना। तो बेटा मैंने कंपाइलर से कहा इस नाम की एक फाइल बनाना, उसमें ए और बी लिख देना और फाइल को क्लोज कर देना। बेटा आउटपुट कहां पर दिखाई देगा, जिस फोल्डर में प्रोग्राम था। प्रोग्राम कहां पर है, लेट मी डिस्कस। जैसी फाइल बन गई, उसके अंदर बेटा एपी भी आ गया। सो अपनी कॉपी निकाल ले और बेटा एक प्रोग्राम लिखे, राइट अ प्रोग्राम इन जावा that will copy the content of a file. Write a program in Java that will copy the content of a file in another file. That is file input stream. So बेटा A54.java को मैं कॉपी कर रहा हूँ, A2.txt में कॉपी कर रहा हूँ। बेटा सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर रीड करो। किस क्लास का, f.read। इस क्लास का बेटा अगर वो कैरेक्टर -1 नहीं है तो फाइल अभी खाली नहीं हुई। बोल रहे बेटा अगर वो कैरेक्टर -1 नहीं है तो फाइल में पढ़ने के लिए कुछ है अभी, और जो कैरेक्टर आपने पढ़ा वो खत्म तो नहीं हुई है फाइल अभी, उसको राइट कर दो। किसमें, बेटा उसको राइट कर दो किसमें, इस वाली क्लास में। ये प्रोसीजर चलता रहे कब तक, जब तक पढ़ने के लिए मेरे पास कैरेक्टर्स हैं।
किस फाइल में? A54.java में। फाइल को क्लोज कर दो। प्रोग्राम को कंपाइल करके, सॉरी, आउटपुट कहां पर आएगा बेटा? फोल्डर के अंदर। सो लेट मी चेक द फोल्डर एज वेल फॉर यू पीपल। जैसे ठीक है बेटा, आप एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। नाउ लेट मी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। Let me open the class for you first, so that you can check the byte array output stream. Just see, byte array output stream. Just see. ठीक है बेटा? जैसे बेटा डेटा को राइट करेगा किसमें? इस बाइट एरे में। बाइट एरे आपके पास आ जाएगा, आप कहीं यूज कर सकते हैं। सो बेटा ये क्लास को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप अपने आप पढ़ें, प्रॉब्लम आए मुझे बताएं आप। Now we are going to discuss some classes of what? Reader writer. So class is file reader. बेटा फाइल रीडर बिल्कुल सेम काम करेगी फाइल इनपुट स्ट्रीम की तरह। द ओनली डिफरेंस क्या है कि फाइल रीडर डील करेगा कैरेक्टर के साथ। इट डील विद द कैरेक्टर्स। कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा, बट इट डील्स विद द कैरेक्टर्स। याद रखेंगे आप। जैसे अगर आप इसको कैरेक्टर में कास्ट कर ले, एलन हटा दें, व्हाट विल हैपन? कैसे कंप्लीट प्रोग्राम कैन बी रीड। ठीक है बेटा, मैंने कंप्लीट प्रोग्राम को क्या कर लिया बेटा? रीड कर लिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल रीडर। In the same manner, you can discuss the concept of file writer. So I am skipping file writer for you people. Next class है बेटा print writer, most and most important. Let me the open class for you. Prints format representation of object to a text output stream. This class implement all the print methods found in print stream. ठीक है बेटा? तो बेटा अगर ये प्रिंट राइटर मेरे पास
प्रिंटर से आ रहा है तो प्रिंटर पे प्रिंट कर देगा, अगर ये प्रिंट राइटर पेंटिंग से आ रहा है तो पेंटिंग पे प्रिंट कर देगा। सो आई विल डिमांड दिस प्रिंट राइटर फ्रॉम सिस्टम, जैसी print writer. So let me design a program for you. File output stream f equals new file let me सी। बेटा ये प्रिंट राइटर कहां से आया है, इस बार फाइल आउटपुट स्ट्रीम से आया है, समझ रहे हैं आप, ये प्रिंट राइटर फाइल आउटपुट स्ट्रीम से आया है। तो बेटा जो भी आप चीज राइट करेंगे वो इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। बेटा फॉल्स मीनिंग क्या है कि जो कंटेंट पहले से फाइल में था उसको तो आप एज इट इज रखें, जो कंटेंट पहले से फाइल में था उसको तो आप एज इट इज रखें और इसमें नया कंटेंट अपेंड कर दे, समझ गए आप। जो कंटेंट बेटा पहले से था उसको आप एज इट इज रखें और नया अपेंड कर दें, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉल्स। Let me check the syntax of a method. Character array. So in this we can pass character array. So let me convert this one. So let me convert into the character array. Okay, so I will write this content into the file a56.java. Sorry, let me compile a57. Sorry, let me pass ch. There are a lot of errors, right? So let me check the syntax of my method. Oh, okay. So what I will do, I will remove this one
and I will change the name of the file. Just see. So let me check the output as well. Just see. प्रिंट राइटर की फैसिलिटी क्या है कि प्रिंट राइटर जहां से भी आएगा वहीं पे प्रिंट कर देगा। अगर ये प्रिंटर से आएगा तो प्रिंटर पे प्रिंट कर देगा, अगर ये पेंटिंग से आएगा तो पेंटिंग पे प्रिंट कर देगा, सिस्टम से आएगा तो सिस्टम पे प्रिंट कर देगा, क्लाइंट सर्वर से आएगा तो क्लाइंट पे प्रिंट कर देगा। समझ गया? नेक्स्ट, बेटा क्लास है फाइल, उसको डिस्कस करते हैं। लेट मी शो यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल। Please read this one. The theory part is very important. Please read this all file. पाथ नेम। तो बेटे अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है या फोल्डर क्रिएट करना है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ फाइल लाइक let me compile the program. Let me run the program. पर जहां पर प्रोग्राम सेव हो रहे हैं, अरे फोल्डर बनना चाहिए था बेटा, फोल्डर क्यों नहीं बना? फोल्डर बनना चाहिए था, फोल्डर नहीं बना, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, फाइल कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास, URI URL, get name, get parent file, get path is absolute, get absolute path, get absolute file, get canonical path, to URL, to URI, can read, can write, exist, is directory, is file, is hidden, is read only, last modified, length, create new file. So let me call this one just see. Let me close the file as well. बेटा फाइल को क्लोज करना पड़ेगा।
कंपाइल, एरर। बेटा फाइल क्लास को डिस्कस करना है हमको। डिलीट द फाइल, डिलीट और एग्जिस्ट, लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट फाइल्स, लिस्ट फाइल्स, sorry beta, this one. So this will make a new directory for you. बटा जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक एक मेथड अभी हम चलाकर देखेंगे। ठीक है बेटा, बेटा बन क्यों नहीं रही, क्या हो गया? माई फोल्डर बनना चाहिए था, बनाया नहीं। आपने नजर लगा दी मुझको, वरना मेरे प्रोग्राम चला नहीं करते थे, ऐसे रुका नहीं करते थे। लेट मी प्रिंट, लेट मी कंपाइल द प्रोग्राम। फॉल्स, बच्चे बन नहीं पाया, क्यों नहीं बन पाया चेक करते हैं। बेटा ये तो बन ही नहीं पा रहा, क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? माई फोल्डर डॉट txt, so let me create a file, true, this one, oh yeah exactly। ठीक है बेटा, बन गया। hardly matters। next program, let me check whether it's a file or, but it is not a folder, I think it is a file, and I was interested in folder, so let me create the folder as well। That is not a folder, it is a file, and I am for a moment, let's say I want to create a file, true, let me check, the extension of Java, oh I think it is, so anyway I will discuss it later, but the method of creating a folder is that। Anyway let's say I have a let me discuss f dot read only, each directory is file
Let me discuss these three. Is read only. Let me check. बेटा मुझे सारे फंक्शंस याद नहीं हैं, लेकिन आपको याद करने हैं। क्यों याद करने हैं बेटा? क्योंकि याद करके आप अपने सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी बना पाएंगे। देखो आपके सामने है, मैंने याद नहीं करे मैं अटक गया, आप याद नहीं करेंगे आप भी अटक जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो बेटा आपको याद करने हैं सारे के सारे फंक्शंस। In these days I am not focusing on Java, that's why शायद मैं भूल रहा हूँ उनको, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको सारे के सारे फंक्शंस याद रखने हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप? भूलेंगे तो नहीं या भूल जाएंगे बेटा? बेटा फंक्शन से याद रहेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, अदरवाइज तो मेरी तरह ऊपर नीचे करते रहोगे कर्सर को। समझ गए आप? थोड़ा I think that is not available in this, so let me remove this one. फॉल्स ट्रू। क्यों बेटा? डायरेक्टरी है क्या? नहीं, ये तो फाइल है। ट्रू फॉल्स। ठीक है बेटा? बेटा लेट्स से मुझे एक फोल्डर की सारी फाइल चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू, let me create a folder for you. Let's say this one. So I require all HTML file of this folder. So let me pass the path. Let me check whether it is a directory or not. So check. Let me pass in a double quotes. ट्रू। तो बेटा ये क्या है? डायरेक्टरी हमने पास की है, दैट इज नॉट अ फाइल, दैट इज अ डायरेक्टरी। और बेटा ये मैं चेक कर चुका हूं कि ये डायरेक्टरी है। बेटा अब मुझे इस फोल्डर के सारी की सारी फाइल चाहिए, सो f डॉट गेट फाइल्स। अब चेक कर ले बेटा, इसमें मेथड है f डॉट गेट फाइल्स। थोड़ा उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, आपको सारी की सारी फाइल मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, आपको क्या मिल जाएंगी? सारी की सारी फाइल मिल जाएंगी। लिस्ट फाइल्स भी हमारे पास है और गेट फाइल भी हमारे पास है। लिस्ट फाइल्स ये चला देते हैं बेटा। आपको इस फोल्डर की सारी फाइल मिल गई। आप क्या होगे सर, हम क्या करें फाइल का? बेटा आप इनका नाम प्रिंट करा सकते हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, यू हैव मैनी ऑप्शंस। तो बेटा अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आपको किसी फोल्डर का डेटा रीड करना है, लाइक आप विंडो मीडिया प्लेयर बना रहे हैं, आपको एक फोल्डर के गाने प्लेलिस्ट में ऐड करने हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक हेल्प ऑफ फाइल। समझ गए बेटा आप? तो बेटा फिलहाल मैं इनका सबका नाम प्रिंट करा देता हूं।
एक्सपेक्टेड, तो ठीक है। हाँ प्रॉब्लम है भैया, दिख रही है बेटा कहीं? नॉट अ स्टेटमेंट, सोर्स एरे है, एरे की लेंथ प्रॉपर्टी है। ओ सॉरी 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 सॉरी, बेटा प्रिंट हो गए? तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कोई फोल्डर पहले से बना हुआ है तो आप बेटा डेटा को रीड कर सकते हैं, फाइल का नाम रीड कर सकते हैं, फाइल ऐड कर सकते हैं, उसको रीड ओनली कर सकते हैं, उसका लास्ट मॉडिफाई सेट कर सकते हैं। दैट इज द वर्किंग ऑफ फाइल। So now we are discussing about the things of file input stream, output stream, reader, writer and so on. So in the next class we will discuss IO package, util package. So in next class we will discuss what? Util package. This one. This one. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यूटिल पैकेज। थैंक यू।